હા, જય સચિદાનંદ. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હો જોરે. મનથી પણ કોઈ જીવનો બુરો વિચારે ના હો જોરે. મનથી પણ કોઈ જીવનો વિચારે ના હો જોરે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હો જોરે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હો જોરે. વાણીથી શીતલ માધુરી બેરાલે તે હો જોરે. વાણીથી શીતલ માધુરી બેરાલે હો મોટોરે. લોકોને સુખ આપી તેવા કાયા તેજક જોશો રે. લોકોને સુખ આપે તેવા કાયા You've plugged into Nirvana. આ દુનિયામાં સર્વે Your device is ready to pair. ને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હો જોરે. Maximum volume. ને તે ધનધામ બેરાલે ગુલતે મેં. લક્ષ્મી ગમે તે ધનધામ બેરાલે જે હુર્યો રે. પુણ્યોપાચક સત્સંગ માર્ગે કરશી ધનને ધોજો રે. પુણ્યોપાચક સત્સંગ માર્ગે કરશે ધનને ધોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હો જોરે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હો જોરે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હો જોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર રોગો રે. માનવ Adios, amigo. Powering off. મંદિર છે આત્મા અંદર રોગો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને
સુખને શાંતિ હો જોને. જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाया आपने. Okay, quickly, no column. Shreya, number 1. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અન્મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 2, Chinay. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન દુભે ન દુભાય કે દુભા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Navneet Didi, number 3. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Shreya, number 5. જય સચ્ચિદાનંદ. નંબર 4. 4, sorry, thank you. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અન્મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Chinay, number 5. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંત્રીની ભાષા ના બોલી જાય, ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંત્રીની ભાષા બોલે તો મને મધુર રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. Moti Ben, number 6. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગરના પોષક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Navneet Didi, number 7. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Number 8, Shreya. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જીવન મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અન્મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Chinay. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય Good. સચ્ચિદાનંદ. Pradeep Dada, Jai Sachchidanand. जय सच्चिदानंद. त्रिमंत्र बुलाए, बालक को फॉलो करेंगे. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમાય રિયાણમ, नमो उवज्जायाणम, નમો ઉવસાયાણમ, नमो लोये सव्व साहुणम, નમો લોય સંવત્સરમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુખારો, सव्व पावपणासनो, સૌવપાવપણાસનો, मंगलाणं च सव्वेशीं,
मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद चिनाय। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और समझ में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मौरत सबसे प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अनुज। जय चिनाय। सच्चिदानंद भगवान। हे दादा भगवान, आपके बच्चे हम हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। और काम करेंगे अच्छे अच्छे। हाँ, करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। हमने अनुज बोला था, आरुष नहीं बोला था। एनीवे ओके। जय सच्चिदानंद। ओके। नेवना दीदी। नवनी दीदी। हे दादा भगवान। सेपरेशन। सेपरेशन। हे दादा भगवान, आप अलग हैं, नवनिधि अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, नवनिधि अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हैं, नवनिधि रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हैं, नवनिधि टेम्पररी है। चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, आज किसने रिपोर्ट नहीं भेजा? No, Hetoswiti, you don't need to do that. You're exempted. दरअसल देखो बच्चे, देखो दीपक दादा, मेजोरिटी नहीं भेजते, क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी उनको उनके पास मोटिवेशन नहीं है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। और मोटिवेशन डब्बा मिल जाएगा तो वो करेंगे। आपको प्रोग्रेस करना है ना आरुष, दर्शन, तो आप अपने लिए अच्छे जज हो या हम लोग आपके लिए अच्छे जज हैं?
उसका मतलब क्या होता है? आप अपने आप को अच्छे जानते हो कि हम आपको अच्छे जानते हैं? हम आप ही अपने आप को अच्छे जानते हो ना। तो आप अपनी जितनी बातें खुली करेंगे उतने आप प्रगति करेंगे, उतने आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जो रिपोर्ट लिखने का है उसके संबंध में बहुत अच्छा कॉर्पोरेट लेवल के अनुभवी ने बताया है। What gets tracked down gets done। इसका मतलब क्या हो गया? What gets tracked down gets done। सही है रनी दादा? हाँ, वंडरफुल, यस। उसका मतलब क्या होता है? लिख दो। What gets tracked down gets done। ओके, ये लोग जो ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वो अपना लॉग बनाते हैं। दिस इज लाइक लॉगिंग योर परफॉर्मेंस। समझ में आया? आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना स्कूल में, हाँ तो ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, फिर कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। लिखते हैं। तो ये अपनी लाइफ का एक्सपेरिमेंटेशन है दादा के साइंस के अनुसार, और उसका हम लॉग करेंगे, उसका हम ऑब्जर्वेशन, खुद का ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, तो हमें खुद को पता चलेगा वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ हूँ, वो हमें पता चलेगा। तो हमें पता चलता है कि अब मुझे क्या करना है। इसीलिए अपने बारे में अगर आप इस तरह से रिपोर्ट लिखते जाओगे तो उससे आपको अपना प्रोग्रेस पता चलेगा, और अंदर से फिर आवाज आएगी कि नहीं मुझे करना है, दादा मुझे शक्ति दो। फिर देखो कैसे होता है। लेकिन अगर आप लिखेंगे नहीं, ऑब्जर्वेशन अपना लिखेंगे नहीं, तो वो अवेकनिंग समझते हैं, वो जागरूकता आएगी ही नहीं। फिर आपको जागरूक होना है कि ऐसे ही वो पत्थर रोल होता है, ऐसे रोल होते रहना है। कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी अटक गए, बार बार अटकते रहेंगे। समझ में आया? हाँ तो ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है कि हम अपने खुद के बारे में लिख ले जो जो बताया जाता है। लेकिन किसी को ये पसंद नहीं है। ओ नहीं दीपक पसंद दादा, ना? ओ परेश दादा ने बोला था ना कि आपको चूज करने का है, आपको ब्रिलियंट बनने का है कि यू डब्बा चूज। बनने का। और डब्बा यस। किसको बनने का, हाथ ऊंचो करो। नहीं, किसी को बनना नहीं है। ये तो हमारे बच्चे ऐसे डब्बा बनने के लिए नहीं आए सत्संग। तो सही है ना? हाँ वो डब्बा बनने के लिए नहीं आए। लेकिन अंदर से वो आलस नाम की चीज है ना, वो पता नहीं कहाँ से भी आ जाती है। दरअसल ऐसा होता है ना, आलस आ जाती है, याद रहता नहीं है। आरुष, तो तकसीमा भी आलसी हो गई है अभी। वो इतना सूर्य नमस्कार करती है, पता नहीं कहाँ जाता है सब करके। हाँ, लेकिन सुपर ब्रेन योगा किसने नहीं किया, वो हाथ ऊंचा करो। अरे आप करो, मैं तो बोलता हूँ आप करेंगे तो मैं आपका पैर छूऊंगा, सचमुच। क्योंकि उसे जो फल मिलता है ना, अनबिलीवेबल है। हरी तुम अभी सोना नहीं, अभी सोने को टाइम है। हरी, नो स्लीपिंग नाउ फॉर हाफ एन आवर। हाँ, प्लीज हो जाना। ऐसा है तो आप खुद के लिए नहीं करना, लेकिन मेरे लिए करना प्लीज। करेंगे? मेरे लिए करेंगे दर्शन, मेरे लिए करोगे? हाँ तो वेरी छोटू, गुड। चलो, छोटू आपको मालूम है क्या है सुपर ब्रेन योगा? सुपर ब्रेन योगा क्या है आपको मालूम है? नहीं तो और दीदी के पास सीख लेने का। ओके ओके, मोटी बहन, अपना रिपोर्ट क्यों लिखने का होता है?
हमें रिपोर्ट इसलिए लिखना होता है कि हमें पता चले कि हमने आज क्या किया और हम ट्रैक कर सके कि हमारा प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, कि अभी हम वहीं का वही है जहाँ से शुरुआत की थी। और आप कॉलेज में रिपोर्ट लिखते हैं? हाँ। ओके। ऑफिस में जाएंगे तो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। हाँ। बिजनेस करेंगे तो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। यस। देखो चिल्ड्रन, ये रिपोर्ट सारी जिंदगी कर रहा हूँ, हम भी अभी लिखते हैं एवरीडे, हमारा रिपोर्ट लिखते हैं। मम्मी तो ने हम क्या खर्चा किया वो मम्मी हिसाब लिखती है? वो मेरे ही पैसे हैं तो मुझे हिसाब लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, कहाँ उपयोग किया वो ठीक है, लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं आता है जो हमारे पास बैलेंस है और वो बैलेंस हमारे हिसाब के अनुसार नहीं आता है, देन देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए ये लिखना जरूरी है। ओके। तो भरत दादा ने क्या बोला था, ये छोटी 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 मिस्टेक करते हैं ना तो वो बड़ी हो जाएगी, तो बाद में आप रिपोर्ट अभी नहीं लिखते तो क्या होगा आपका? हाँ? ऑफिस में से फायर हो जाएंगे ना तभी लिखेंगे शायद। नहीं दीपक दादा, आप डब्बा नहीं बोलते पर डब्बा की बात है ये सब। नहीं, अभी ये ओके डब्बे नहीं है अभी। ओके एनीवे ओके। कल ये पीएम का वीडियो किसने देखा था? पिताक्षी बा, आप तो अभी आपको क्या हो गया मालूम नहीं अभी। ओके ओके क्या? ओके वेरी ब्रीफली, कितना पॉइंट मोदी जी ने बोला था, बोलो एक एक पॉइंट बोलने का। चिनाई? हाँ जय सच्चिदानंद। मोदी जी ने ये कहा था कि हमारे पास चाहे विरासत हो, पैसे हो, अगर वो मम्मी पापा भी दे दे तो वो तब नहीं काम आएगी जब नहीं, पॉइंट पॉइंट उसमें से आपको क्या मिला पॉइंट वो बताओ। हमारे आपको पास जो भी है वो फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारी हेल्थ सही है वो मायने रखती है। क्या बताया? हमारे पास जो भी है वो हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर हमारी हेल्थ सही है तो वो हमारी मायने रखती है। हाँ तो वो बोलो ना कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, ऐसे बोलो ना। ओके देव? मोदी जी ने ये कहा कि हमें हमारी लाइफ में अपनी खुद की चीजें लाइक अपनी हेल्थ को संभालना, वो सब दूसरों किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखना है। हमारे खुद से हाँ, दूसरे पे बोझा मत होना, नंबर एक बोझा नहीं होने का, नंबर टू दो हेल्थ, तीसरा कौन को मालूम है? ये द, ओके मोटी बहन? रेगुलरिटी हमें अपने काम के प्रति काबिल बनाती है। हाँ नो वो तो ठीक है, पर एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दीपक दादा क्या करेगा, दिखाओ सबको। रूल्स फॉलो करना चाहिए। होल्ड ऑन। स्टिल वेरी वन इम्पोर्टेंट मोटी बहन, ओनली 3 थिंग्स ही सेड, 1 मिनट में। बोझा नहीं बनने का, हेल्थ, और तीसरा हमें शरीर से ज्यादा काम लेना चाहिए और वो तो हेल्थ में आ जाता है ना। हम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एन से स्टार्ट होता है, एन। नियम नियम हाँ किसने बोला नियम? वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ये सब नियम नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। एक तक से वाह, देखो ये सत्संग में भी जब एक एक ऐसे पॉइंट लिख देने का है। ओके
और अभी सबको अभी नोट्स जो है पीछे देखो, हमने नियम के बारे में कितना बोला था, क्या बोला था, सब कल बताने का। खुशी आपको तो अच्छा नोट्स है ना, उसमें से अच्छा मसाला मिलेंगे। एवरी डे सत्संग में 2-3 पॉइंट ऐसे लिख देने का, ऐसा कि ये आज मेरे को अच्छा लगा, ये मेरे को आज अच्छा लगा। आफ्टर सत्संग और ड्यूरिंग सत्संग भी लिख सकते हैं। किसके पास है नोट्स है नियम का? हाँ खुशी, आप तो बहुत पक्की हो गई, अभी इंडिपेंडेंट हो गई ना। तो किसी के पास नहीं है? श्रेया, यू डोंट राइट नोट्स? मैं लिखती हूँ पर अभी दूसरे बुक में। अच्छा है ना, ओ वेरी गुड। दूसरा कौन लिखते हैं नोट्स? मोनिका लिखते हैं। नवनीति आप नहीं लिखते तो आपको मासी को बोलो लिखे अच्छा पॉइंट। दीपक दादा, व्हाट्स हैपनिंग? They are still learning. नहीं नहीं, आपको क्या हो गया वीडियो? हाँ, 1 मिनट, अभी वो लोकेट नहीं हो रहा है। 1 मिनट, होल्ड ऑन। अब मेरे में देखो ना। ओ दैट्स व्हाट, वही ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। या आई सेंड इट टू यू ना। यस। और ये अपने ग्रुप में भी है 9 o'clock में। या ओके, रेडी? ओके, रेडी? हाँ बस बताइए बताइए। 1 मिनट। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना, ये अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है। और दूसरा, नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोझ न बने। और ये फिटनेस मंत्र तो आपने दे ही दिया कि फिटनेस विरासत में नहीं मिलती। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, ये सब 3 पॉइंट आ गया। हाँ। कीर्तन, यस। कौन सा 3 पॉइंट आया आपने सुना? हमें खुद का ध्यान खुद से रखना चाहिए, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, और देव,
क्या सुना आपने? हमें खुद का काम खुद से करना चाहिए और रूल्स अपने मतलब नियम में रहना चाहिए और हमें दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए मतलब किसी देखो अभी ये 3 गोल में आपका कितना नियम, आप नियम कितने पालते हैं 3 गोलों में? क्या बोला दरअसल क्या बोलने का आपको? मुझे वही बोलना था कि मोदी जी ने क्या कहा। हाँ तो बोलो ना क्या बोलना था। हाँ, जय सच्चिदानंद। मोदी जी ने ये बोला था कि हमें हमें किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, फिर हमें अपने हेल्थ की अपने आप से फिटनेस रहनी चाहिए और हमें अपनी जिंदगी नियमों से जीनी चाहिए। हाँ तो आप नियम में क्यों नहीं चलते? हाँ अभी नियम तो हाँ, इतना बताया, आप तो पूछो ना इतना नियम वो बताया, ये अपना 3 गोल बताया, तो जरा सोचने की बात होती है। ओके तो प्रदीप दादा थोड़ी बातें करो, ये पीएम ने क्या बोला? प्रदीप दादा हाँ जी, हमें जहाँ भी पहुंचना है, ये पहुंचने में हमारा शरीर, हमारा नियम, उन्होंने खास करके ये बात बताई कि विरासत में मतलब कि हमें चमड़ी का कलर, आंखें, सब कुछ मिल ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन ये जो हेल्थ की बात है, हमारा जो नियमों की बात है, हमारा जो गोल हमें प्राप्त करना है, उसमें हमें सब ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये बात आप लोगों को पूरा पक्का पता है कि मदर फादर हमें हर चीज फैसिलिटी देते हैं, और ये फैसिलिटी के कारण हम कमजोर हो गए हैं, हम लाचार हो गए हैं कि हम अगर कल ये फैसिलिटी नहीं भी मिले तो भी मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ, अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकता हूँ, कि फिर डिप्रेशन आएगा कि यार ये चला गया अब क्या करने का। क्योंकि आप लोग अंदर से स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप और मैं, जितना हम समझदारी के साथ हमें कहाँ पहुंचना है, उसमें हमें कैसे नियम के साथ आगे बढ़ना है, वो जो हमारा जीवन समझदारी के साथ नहीं होगा तो बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। इसीलिए दादा भगवान की मैं आपको बात बताता हूँ, तो उनको ज्ञान होने से पहले वो 6 बजे सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे। वो ज्ञान होने से पहले गर्म पानी भी पीते थे, उबाला हुआ पानी पीते थे। क्यों क्यों ऐसा करते थे, आप बताओ? क्योंकि उनको, उनके पास जो समझ वो लेके आए थे, तो वो पूरा परफेक्ट जितना हो सके इतना वो नियम से चलते थे। और ज्ञान होने के बाद इतने बजे उठ जाने का, पूरी रात विधि करने का, इतना घंटा ही सोने का, जो भी आवे उनको पूरा अटेंड करने का, उनकी बात सुनने का, उनकी विधि करने का, और उनके पास से कुछ भी नहीं लेने का। और ऐसा विचार भी नहीं आता था उनको तो ऐसा ही रहता था कि कैसे भी करके लोगों को सुख हो, जो सुख मैंने पाया है वो सबको मिले। तो आप लोग इस उम्र में क्या तय करोगे? मैं बड़ा होकर अच्छी तरह से पढूं, मेरी हेल्थ अच्छी हो तो इतने बजे उठ जाऊं। और ये जो रिपोर्ट वाली बात है, ये आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में, आपको अंदर से ऐसा कौन है जो लिखने नहीं देता है? उसको आप पहले ढूंढ डालो। दादा भगवान का यही मैसेज है कि आंख ना बोलती है, हाथ लिखने को ना बोलता है, कौन ना बोलता है? कोई तो है जो हमें रिपोर्ट लिखने के लिए ना बोलता है, कोई तो ऐसा है जो हमें नियम से जीने के लिए बताता, हेल्प नहीं करता है।
कोई तो है जो हमें माँ बाप को बोझ बनने के लिए, ऐसा बोझ वाला जीवन हमें जीने के लिए बताता है। आपको पहले ये समझने जैसा है, क्योंकि आप लोग बहुत हेल्दी माइंड है। आपको कुछ करना नहीं है, एक बार समझ लो कि ये क्या है और उसका परिणाम क्या आएगा। दादा भगवान हमें कुछ नहीं सिखाते थे, मतलब यही सिखाते थे कि हर चीज का परिणाम आएगा और यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। तो हमें आज से ये तय करना है कि मुझे मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, कितने बजे सोने का, कितने बजे उठने का, कितने बजे खाने का, मेरा पूरा एंटरटेनमेंट। जैसे अब मोदी जी ने क्या बताया, शरीर से काम लेने की बात है। मैं आप लोगों को ये पूछता हूँ कि आप स्टूडेंट्स है, तो आप कितना इनसे काम लेते हो? स्टडी के बारे में कोई सब्जेक्ट में आपको नहीं आता है, आपको दादा भगवान की विधि मिली है, आप माँ बाप के साथ रहते हो, तो शरीर को क्या बोलते हो? मम्मी को हेल्प करने का बोलते हो? खुद का काम खुद कर लेते हो? क्या हमारा काम उनके पर डालते हो? मैं कैसा जीवन जीता हूँ, कौन सी समझ के साथ जीता हूँ? मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ, जाती हूँ, तो मेरा जीवन किस लक्ष्य के साथ जीता हूँ? आपको समझ में आता है ना मैं जो बोलता हूँ? ये लक्ष्य नहीं होगा तो हम कभी भी हमारे ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हमारा गोल हमें नहीं मिल सकता है। घर से निकलो तो दादा भगवान हमें सिखाते थे, तो वैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको पूछता हूँ कि आप शरीर से कैसे काम लेते हो? आपने कभी एनालिसिस किया है? आपने जो रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, तो पहले ये सोचो, ये रिपोर्ट दूसरों के फायदे के लिए है कि मेरे खुद के फायदे के लिए है? पहला आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं मेरी खुद की गलती जो है उससे मुक्त होने के लिए, और मेरा प्रोग्रेस किस वजह से अटका है, तो उसका कौन सी ट्रीटमेंट किया जाए। और ये सब आप रिपोर्ट से आप खुद पढ़ोगे, तो आपको लिखने के बाद आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे हर चीज दादा भगवान कहते थे कि ये एक एक चीज को हमारा जीवन समझने के लिए। लेकिन आप सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर में चलता भी होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज। मैं किसी भी तरह, एक बार मैंने तय कर लिया कि मुझे ये करना है, अगर समझो कि मुझे 4 बजे उठना है और किसी कोई वजह से नींद आ गई, आज की बात बताता हूँ, तो मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया कि मैं 3-4 बजे उठ के विधि करता था, आज नींद ज्यादा कैसे आ गई? तो सब सोचते सोचते पता चला कि मैं जो रोज खाता था इससे मैंने 2 गुना खा लिया था। और चीज को मैंने एनालिसिस करके मैंने खुद को देख लिया कि गड़बड़ कहाँ से हुई है, कितने बजे सो गया था, कितने बजे उठता हूँ, पूरा सुबह से शाम तक का मैंने एनालिसिस सब देख लिया। फिर पता चला कि हो ऐसी ऐसी गलती होने से हो सकता है, चलो आज इससे इंप्रूव करो। ये रिपोर्ट ऐसी चीज है, वो आपके खुद के फायदे के लिए है। इसलिए शरीर से काम लो, मगज से काम लो, उनको ऐसा काम दो तो फिर आपको ये प्रेयर नहीं बोलनी पड़ेगी। कौन सी? कि मैं कुसंग से दूर रहूंगा, मैं बुरी सोबत से दूर रहूंगा। ये आप बराबर सुन लो, कान खोल के सुन लो। जो इंसान के पास विजन आ गया, समझ आ गई, और सिस्टम एक बार एस्टैब्लिश कर दी, तो फिर कोई सवाल उठता ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ, दादा भगवान कहते थे कि जैसे आप लोग दुनिया को देखते हो वैसे मैं भी देखता हूँ, आप जैसे खाते हो वैसे ही मैं खाता हूँ, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं। लेकिन मेरी जो अंदर की समझ है
कैसे जीवन जीने का है, वो समझ के साथ में जीता हूं। आप आपकी समझ के हिसाब से जीते हो तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव की असर होती है। दादा हमेशा मुक्त रहते थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हर चीज को पहले समझो। दीपक आनंद जी हो, रजनी दादा हो, भरत भाई आपका पुत्र हो, कोई भी आपका पुत्र हो, अगर आपके स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल भी हो या डीन भी हो, कोई भी बात बोले तो पहले उनमें से आप समझो कि ये चीज क्या कहना चाहते हैं। आप सुनते रहोगे ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अंदर वो एक बात बताया ना कि आज के दिन में, आज के सत्संग में मैंने क्या कमाई की, कितने पॉइंट मेरे काम में आवे, ऐसी कौन सी बात थी। तो ये सब नहीं तो आप जो माइंड, आपकी इंटेलेक्ट, ये सब का जो प्रॉपर यूज नहीं होगा तो अंदर से, दादा भगवान ने एक बात बताया था कि बाहर से ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंटल सब चीज है लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। उसी दर्शक में बताया है। तो मैंने एक बार दादा भगवान को एक सवाल पूछा, दादा ये क्या है? तो दादा ने क्या बताया कि जब आप में से मोह चला जाएगा तब ये बात आपको समझ में आएगी। तो मैं खुद सोचने लग गया कि मैं इतना सिंपल हूँ, मुझे मोह तो है, मैं सोना नहीं पहनता हूँ, मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, फिर भी दादा ने बोला कि आप में मोह चला जाएगा तब बात समझ में आएगी। तो अभी भी मेरे ये चक्कर चलता रहता था कि मोह चीज, दादा कौन से मोह की बात करते थे। इसी तरह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत हेल्दी माइंड है, आप बहुत पुण्यशाली है, अच्छे माँ बाप मिले हैं, लेकिन बहुत समझदारी के साथ हमें जीवन जीने जैसा है। ये बोझ वाली बात तो दादा भगवान ने भी बताई थी। बोझ बनना जब आपकी समझ में आएगा ना, आप खुश हो जाओगे। इसीलिए अपनी संस्कृति में ये है स्वावलंबी। जितना हो सके इतना हमारा काम हमें खुद करना चाहिए, समझे। और डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। चाहे 11 बजे स्कूल में जाना हो तो क्या है, उसका मतलब कि 9 बजे उठने का है, 9 बजे उठने का है। वो क्या सिस्टम होती है क्या? यंग तो कैसे होते हैं, सुबह में उठते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, विधि करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। आपको आपका बॉडी का, समय का, सबका फायदा उठाना हो तो ये सब चीज सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही सांसें चलती रहेगी, हमारा जीवन धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा और पूर्णाहुति हो जाएगी। दादा भगवान क्या कहते थे, हूं कोઈને काम लागવો જોઈએ, जो मुझे मिला उसको सुख होना चाहिए। मेरा जीवन इसीलिए है कि सबको सुख मिले। आपका क्या नियम है? आपसे माँ बाप को सुख होता है, आप स्कूल में जाते हो तो सबको सुख होता है, आपके टीचर्स को सुख होता है। पहले आप खुद अंदर देख लो ना कि आपको भय लगता है, आपको कंटाला आता है, भय तो बहुत लगता है। आपको क्या क्या होता है नेगेटिव, बताओ। ये क्यों होता है? ये कहां से आया? मेरी बॉडी में आया कहां से ये कि जो मुझे टेंशन होता है, मुझे भय लगता है, मुझे कंटाला आता है, मुझे आलस आती है, मुझे चीट करता है, ये आया कहां से? ये आपके फायदे की वाली चीज है कि नुकसान वाली चीज है? बताओ ना। ऐसा होता होगा मैं जो बोलता हूँ इससे अंदर सामान है थोड़ा बहुत, एक दो आइटम है। कभी कभी झूठ बोलने की भी प्रेरणा देता है ना अंदर से, बोलो ना। क्यों? ऐसी क्या चीज है झूठ बोलने की? ये कौन है अंदर? क्यों डरने का किसी से? उसका मतलब कि हमें
ऐसी समझ के साथ जीना है, किसी को ताकत दिखाना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ऐसी समझ के साथ जीना है जो हम सो जावे तो अच्छी तरह से नींद आ जावे, हमारा जीवन है किसी को हमारे में से प्रेरणा मिले। अगर प्रेरणा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम निष्कलंक जीवन होना चाहिए। कैसा निष्कलंक समझ में आया? वो दीपक आनंद जी बताएंगे। दोष रहित, प्योर, हाँ, कोई हमारा नाम नहीं ले सकता। दादा भगवान तो यहाँ तक कहते थे कि भगवान भी नाम नहीं दे सकता है अपना, लेकिन आपको ये बात बोलने की नहीं है, लेकिन हर कोने में, हर जगह पे, हर संजोग में हमें ये समझ के साथ जीने जैसा है। जीवन बहुत पढ़ा अच्छा है। सबको मालूम पड़ा। दीपक प्रदीप दादा ने क्या बोला? हाँ? तो ये देखो, ये होमवर्क है, ये बार बार सुन को और नोट्स लिखने का और भेजने का हमको, आप पोस्ट करो अपने। ओके आरुष, आपको क्या क्वेश्चन था आरुष? मैं एक लीटी गाता हूँ, रजनी भाई साहब 1 मिनट। हाँ बोलो। जीवननी खुली किताबे ना क्यों छानू छपनु। दीपक आनंद जी, દાદાની પુણ્ય જોવામાં લીટીઓ છે ને દાદાની, हाँ, એમાં દાદા की किताब खुली थी, ओपन थी। आपको समझ में आया ना? जीवन ट्रांसफरेंट जितना होगा ना, आप बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ट्रांसफरेंट, और ये ऐसा जीवन जीने जैसा है, ऐसा हमें तैयारी करनी है, इस बात पे चलना है। ट्रांसफरेंट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब प्लीज नोट्स लिखने का। आरुष, आपको क्या क्वेश्चन था? मुझे क्वेश्चन नहीं था, मुझे बताना है। बोलो। हाँ, कि 24 डेट को मेरे स्कूल में परेड है, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छा बजा पाऊँ। ओके, दादा भगवान को प्रार्थना है आप खूब आगे बढ़ो। हाँ हाँ। ओके, जय मम्मी सच्चिदानंद। पापा को प्रणाम करके जाना। हाँ, हाँ। पहला आशीर्वाद मम्मी पापा का लेना। हाँ, हाँ। फिर मुझे बताना दीपक आनंद जी साहब को। हाँ हाँ, ओके। मैं वीडियो भेज दूंगा दादा। हाँ, और फिर बाद में त्रिमंत्र बोल के जाने का, दादा को साथ में रख के। ओके, हाँ। सब अच्छा हो जाएगा। जाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो ये प्रदीप दादा ने तो बहुत कुछ अच्छा